in front of your screen, I have mentioned that your values of x and y axis respectively are on the x and y axis values at initial. On x axis it is 0, on y axis it is also 0. X it is 2, y also 2, 4, 3, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8, 7, and 9, and 10 and 9. So you are just aware about such table. So what I am doing is that right now I am drawing a graph of it. So to draw the graph of it, what I should do is that I am putting x and y axis respectively. So let's say I am drawing a x axis. आप scale भी ले सकते हो आप x axis और y axis के लिए. मुझे scale नहीं लेना है. I am just directly moving or putting those parts. तो लेट्स से मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर कोई x and y एक्सिस. चलिए, नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम पुटिंग these values. I am taking that between the two squares in front of my screen. आपका you can just take any value. Let's say on my screen my squares are very much smaller in nature. तो आप दो या तीन ले सकते हो. So I'm taking three squares. So each 3 square is dealing with the one number. So 3, then I have a 4, in 5, and 6, 7, 8, 9, and then 10. Same is the course I'm applying on the y-axis. For every 3 square, I am putting one decimal number. चलिए, on your graph paper you can take any square. जैसे कि आपके पास you have graph paper containing 1 centimeter, so each centimeter contains one digital decimal number. So I mentioned all those things. Now I am putting points. So when my x-axis is 0, y is also 0. So I am putting those points. When my x is 0, my y is also 0. When my x is 2, y is also 2. So when x and y both are meeting at one number, so let's say this is the point where I'm drawing a perpendiculars. With the help of a scale, you can cross check it. तो आपने जो का ड्रॉ किया है तो x और y एक्सिस दोनों पर दो का वैल्यू जहां पर मिल रहा है, they will coincide. You have to match that thing. After that, my value of x is 4 and my value of y is 3. So this is 4 value and that is matching with the 3 number. So this is the point where my x and y meets. Sorry, x it is 4 and y it is 3. So I am putting those points. On the x it is 4 and the y it is 3. So I am drawing such type of perpendicular on the x and y. After that, on the x it is 5 and y it is 4. So this is my 4 and this one is my 5. So this is the point. So these are the such points we have. Then I have a 6 and 5. Then 7 and 6. Then I have 8 and 7. 7 on a y-axis and 8 on the x-axis. Then we have 8 and 7. Okay. Then we have a 9 and 8. See, actually we are not putting such type of a dotted line, but right now I'm just guessing that you are at an initial phase of this graph. So I'm drawing such type of thing. Laterwards, I will remove those points or dotted lines. So I am just putting such type of a perpendicular lines. Now I am putting points over there. So these are my points, which after drawn perpendicular I am receiving.
and now I am removing all those dotted lines. So all those dotted lines I am removing only. So I have left part is my only blue points. Yes, whenever you will draw your graphs, you have to just put such type of lines. I am putting also y-axis because it has already been removed. So now I am removing this y and x. So I am now removing my perpendiculars on the y-axis and x-axis. Sure. Now my task has been done somehow, and I am drawing a line on the axis. So this is my y-axis. Now this is the initial task. What actually I have to do right now is joining these all points together with the help of a scale. Take a scale and now draw a straight line which should accommodate all your points. Try karna maximum points will be accommodated. So I am taking a scale and trying that all these points on this line must be accommodated. They must touch. So right now I have drawn all those points connected. So some points are touching, some points are away from it. So in front of your graph, you can see that there are some points. Let's say these 4 blue dotted points are not on the straight line. So in physics language, these points are not touching our straight line. It is called as not following our theory. मीन्स हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उसमें ये मैच नहीं हो रहा है. तो यू कैन नॉट टेक दिस पॉइंट्स. तो हम लोग अभी जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो वी कैन नॉट यूज दिस पॉइंट्स बिकॉज इट इज यूजलेस पॉइंट्स. तो हमको उसको काउंट नहीं करना है. अगर यही पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन होते तो यू कैन चूज एनी पॉइंट. तो ध्यान रखना है, जब भी प्रैक्टिकल करो या थियोरी में हम लोग देखेंगे तो ये पॉइंट्स को बोलेंगे दे आर डिसओबेइंग अवर लॉ, दे आर नॉट फुलफिलिंग अवर कंडीशन. चलिए अभी जो मिल रहे हैं, जो टच हो रहे हैं उनकी बात कर लें. तो जो टच हो रहे हैं उसमें वी कैन जस्ट सी दैट यू कैन चूज एनी पॉइंट. चलिए जो टच हो रहे हैं उसमें से दिस इज द वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. चलिए कौन सा आपको कनेक्ट करना है, बोलिए. विच वन यू वांट टू चूज? लेट्स से आई एम टेकिंग फर्स्ट वन एंड थर्ड वन. तो फर्स्ट को और थर्ड को मिलाने के लिए दोनों को ऐसा करिए कि दोनों एक जगह पर कोइंसाइड हो जाएं. तो फर्स्ट को मैंने ऑन द एक्स एक्सिस एक्सटेंड किया है. सेम कोर्स आई एम अप्लाइंग फॉर द अनदर पॉइंट दैट इज अ थर्ड पॉइंट. दोनों को मिला देता हूं. यस, यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं. दोनों जहां पर मिल रहे हैं वैसा तो मैंने एक्सटेंड कर दिया. अभी दोनों को कोइंसाइड करना है. तो कोइंसाइड करने के लिए आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग अ लाइन. कोइंसाइड का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि भी मेरा पहला वाला पॉइंट मिल रहा था तो उसका परपेंडिकुलर मैंने एक्स एक्सिस पे कर दिया, और दूसरा जो पॉइंट थर्ड था उसका भी जहां पर पॉइंट मिल रहा था उसको भी कोइंसाइड कर दिया. तो लेट्स से थर्ड वन को भी मैं कोइंसाइड कर देता हूँ ऑन द एक्स एक्सिस. तो वन बाय वन दोनों को एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर दीजिए. कर दिया. अभी दोनों को वन बाय वन ऑन द वाई एक्सिस कोइंसाइड करिए. तो लेट्स से कोइंसाइड हो रहा है ऑन द वाई एक्सिस ये 2 पर, और ये हो रहा है कोइंसाइड ऑन द थर्ड वाला जो है वो कोइंसाइड हो रहा है मेरा 8 के ऊपर. यस. अभी व्हाट आई एम डूइंग इज दैट ये जो हमारा पोर्शन मिला, जो 3 से लेके फर्स्ट वाला जो है, ये वाला जो ट्रायंगल जैसा मिल रहा है हमको, जिसको मैं अभी ब्लू ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरे को बोलते हैं एरिया एनक्लोज्ड अंडर द ग्राफ. So this is the point which is called as area enclosed under the graph. Let's say I am just giving them a nomenclature.
तो लेट्स से अभी मैं जो पॉइंट चूज किया था वो तो हमको पता ही है, तो बाकी का पॉइंट्स निकाल लेता हूँ मैं। तो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट चूज किया था, आई एम जस्ट गिविंग दैट अ नेम ए, जहां पर दे विल कोइंसाइड इज पॉइंट बी एंड सी। तो एबीसी दिख रहा है हमको ट्राइंगल, तो एबीसी ट्राइंगल is called as area under the influence of the graph. चैप्टर नंबर 4 में मोर ओवर वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। तो ट्राइंगल एबीसी को बोलते हैं एरिया कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्राफ, जो हमारा पूरा इंफॉर्मेशन देगा। चलिए वो हमारा फुलफिल हो गया। अभी मुझे ऐसा करना है कि यार वैल्यू फाइंड करना है, मींस स्लोप फाइंड करना है, जिसके लिए हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है। चलिए स्लोप फाइंड करने के लिए आई हैव टू फॉलो सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स। I have to give them a few numbers. तो C जो है वो 8 पे टच हो रहा है और Y एक्सिस पे है, तो उसको मैं बोलूंगा Y2। और A पॉइंट जो है वो 2 पे टच कर रहा है ऑन द Y एक्सिस, लेट्स गिव देम नंबर Y1। Point A is coincide or drawn perpendicular on the X axis. It is meeting at the point 2. It is called as X1. And point C, which is been drawn perpendicular on the X axis, is meeting at the point 9. It is called as X2. Now, delta X is equals to X2 minus X1. तो x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है मेरा 9 और x1 का वैल्यू है मेरा 2, तो दैट इज कॉल्ड एज अ 7। और डेल्टा y को बोलेंगे y2 माइनस y1, लेट्स से y2 इज 8 and y1 is 2, so delta y is equals to 6. As per my notation yesterday we have learned that के स्लोप, जो हमारा रेड लाइन मैंने a से c का ड्रॉ किया है उसको बोलेंगे स्लोप। तो आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट AC को बोलते हैं स्लोप, इट्स अ सिंबल इज कॉल्ड एज m, या तो बोल सकते हैं हम लोग tan थीटा। tan थीटा क्यों बोलते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो उसको बोलेंगे y का कंपोनेंट डिवाइड बाय x इज कंपोनेंट। y का कंपोनेंट को बोलेंगे डेल्टा y और x के कंपोनेंट को बोलेंगे डेल्टा x। चलिए भाई डेल्टा y हम लोग फाइंड करके आ चुके हैं, तो वी विल से दैट m इज इक्वल्स टू, तो tan थीटा y का कंपोनेंट का वैल्यू है 6 और x के कंपोनेंट का वैल्यू है 7, सो माय स्लोप ऑफ AC इज कॉल्ड एज 7। तो हम लोगों ने यस्टरडे जो बोला y इक्वल्स टू mx प्लस mx, तो दिस इज कॉल्ड एज y इक्वल्स टू mx ग्राफ। यहाँ पर आपने अगर पहला पॉइंट चूज किया है, दूसरा, तीसरा और चौथा, you can choose any point. Y equals to mx graph is always starting from the origin, and you can take any value, any point which is on the line. जो मैंने चार बोले, जो आउटसाइड लाइन है वो नहीं, चारों में से you can choose any point और draw the graph, आपको वैल्यू कांस्टेंट मिलेगा। तो दिस इज द ग्राफ which is called as a y equals to mx graph. अभी मैंने बोला कि सर tan थीटा आपने बोला, यस, अभी tan थीटा दिखाता हूँ आपको। जो मेरे AB और AC को मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था x एंड y एक्सिस में, इसको मैं बोलूंगा थीटा। तो हम लोग देख सकते हैं कि भाई BC है हमारा ऑपोजिट, AB इज आवर एडजेसेंट साइड। तो चलिए लिख लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय AB। तो लेट्स से दिस इज आवर BC और CB डिवाइड बाय AB। अरे यार BC या CB इज कॉल्ड एज BC तो कौन सा है, बोलेंगे यार y2 y1। AB कौन सा है, x2 माइनस x1, तो वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो tan थीटा इक्वल्स टू BC बाय AB। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग इसी ग्राफ को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करते रहेंगे। तो दिस इज हाउ आवर स्लोप ऑफ द ग्राफ्स कैन बी आइडेंटिफाइड। क्लियर है यहाँ तक, सबको पता चला है? Yes, sir. Okay. Yes. So let's say I'm just giving you a screenshot of this one, तो आपको पता चलेगा कैसे फाइंड करना है। अभी ये जो ग्राफ मैंने आपको सिखाया, इट इज कॉल्ड एज अ y इक्वल्स टू mx टाइप ऑफ ग्राफ।
अभी दूसरा आई एम सपोज टू शो यू इज द कॉल एज अ y इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप ऑफ ग्राफ. तो उसके लिए व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम जस्ट रिमूविंग my sum of the data or modifying it. Okay, what I did is, you can see that values, what I did is mentioned those values which were prescribedly given to me. जैसे कि भी मेरे पास यहाँ पर जो भी वैल्यूज मैंने आपके सामने रखी हुई है, पहले क्या थी, एक्स एक्सिस पे देखिए 0 0 था, तो मैं उसको हटा देता हूँ. अब you can see that on the x axis it is a 2 4 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 and 10 13. तो अभी मैं ग्राफ को ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बाकी का जो डेटा है आई एम जस्ट रिमूविंग दोस डेटा. तो स्लोप भी हटा देना पड़ेगा मुझे. बाकी का फॉर्मूला जो है वो आई एम जस्ट पुटिंग राइट नाउ एज इट इज. उसके बाद वाला जो वैल्यूज है वो मैं उसको हटा देता हूं. Values I will just place as per my graph will give me those values or notations. चलिए ये एक्सिस को बड़ा कर देता हूं मैं, क्योंकि उसका वैल्यू मुझे ज्यादा बड़ा चाहिए. So I am drawing this value of this graph somehow larger. चलिए, now everything I have which is directly available to me. अभी as per my graph मैं values ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ. x पर है मेरा वैल्यू 2, तो y पर है मेरा वैल्यू 6. तो चलिए पॉइंट्स प्लेस करता हूँ. x पर है मेरा वैल्यू 2, y पर है मेरा वैल्यू 6. x पर है इट इज वैल्यू इज 4, on a y it is 7. तो on the x it is 4, on a y it is 7. So it is somewhere over here. On the x axis it is 5, on the y axis it is 8. So that would be 5 and 8. तो थोड़ा साइड में चला गया ये वाला. On the x axis it is a 6, on the y axis it is 9. Okay. On the x axis it is 7, on a y axis it is 10. So that would be 7 and 10. So you can place such type of 5 or 6 values. तो चलिए मैंने थोड़ी बाकी सारों को नहीं प्लेस किया, मैंने खाली 3-4 वैल्यूज प्लेस करके आपके सामने छोड़ दिया है. अभी आपको पता है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने जाऊंगा तो इट इज नॉट सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम 0. आगे वाला ग्राफ जो था इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था. अभी इसका मैं स्केल लेके ड्रॉ करना स्टार्ट करूं तो ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा. लेट्स से कैसे होगा, तो देखते हैं. पॉइंट्स प्लेस कर देते हैं. ये पॉइंट्स का स्केल लेके ट्राई करूं कि हर कोई पॉइंट मेरा लाइन पे आए. यस, मैंने ट्राई किया है कि हर कोई पॉइंट लाइन पे आ जाए. तो मैं थोड़ा वाला थिक वाला लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. चलिए, तो हमको दिख रहा है 2 या 3 पॉइंट्स है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मीट अप. तो एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, एक ऑलमोस्ट नजदीक में, चलो ले लेते हैं इसको भी. तीसरा मिल रहा है यहाँ पर. अभी ये ग्राफ इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट. अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है तो y इक्वल्स टू mx नहीं बोल सकते हैं उसको. तो इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलेंगे यार सर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द y एक्सिस पे. ये है 4 और 5 के बीच का कोई पॉइंट है. यस, यू कैन से दैट इज 4.5. तो ओरिजिन से लेके जहां पर ये लाइन टचअप होती है इसको बोलते हैं हम लोग C, विच इज 4.5. अभी C तो मिल गया हमको. अभी हमको फाइंड करना है उसका स्लोप. चलिए अभी स्लोप कैसे फाइंड करोगे, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स ऑन द x एंड y एक्सिस 2. चलिए मैं चूज कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट परपेंडिकुलर्स. x का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेम मैंने लास्ट पॉइंट चूज किया था उसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ चूज कर रहा हूँ मैं. तो लास्ट पॉइंट चूज किया है उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इट इज मीटिंग एट समवेयर 6.
तो मैंने जो पॉइंट चूज किए थे, आई एम ड्राइंग परपेंडिकुलर्स ऑन द एक्स एक्सिस राइट नाउ. नाउ आई एम पुटिंग परपेंडिकुलर्स ऑन द वाई एक्सिस. चलिए परपेंडिकुलर्स ऑन द वाई एक्सिस प्लेस कर लेते हैं. यस, अभी x और y का परपेंडिकुलर तो ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, बट दे मस्ट मीट एट सम पॉइंट. चलिए दोनों को मिलाने के लिए आई एम ड्राइंग वन मोर लाइन. ये दोनों यहाँ पर मीटअप हो रहे हैं. तो चलिए उसका एरिया एनक्लोज्ड कौन सा बोलेंगे? तो बोलेंगे सर नाम तो दे दो. लेट्स से ए है, बी है एंड सी है. अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 6 पर मिल रहा है उसको बोलूंगा y1, और 9 पर मिल रहा है उसको बोलूंगा y2. ए 2 पर मिल रहा है वो है x1, और 6 पर मिल रहा है इट इज कॉल्ड एज x2. तो अभी आएगा मजा. तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई द एरिया एनक्लोज्ड अंडर. तो हमारा ग्राफ का जो बाकी पूरा पोर्शन मिटा सकते हो, तो AC को बोलेंगे हम लोग ये ग्राफ का स्लोप. उसको m भी बोल सकते हैं, tan थीटा भी बोल सकते हैं. तो डेल्टा x मुझे मिला 6 माइनस 2 x2 माइनस x1 इज 4, और डेल्टा y मुझे मिला 9 माइनस 6 विच इज 3. तो अभी ग्राफ का स्लोप लिखने का टाइम आ गया. तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x जो पहले मुझे मिलता था 6/7, अभी ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है. तो y कंपोनेंट है मेरा डेल्टा y बाय डेल्टा x. y कंपोनेंट आई हैव दैट इज कॉल्ड एज 3 एंड x कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज 4. तो मेरा स्लोप मिल गया मुझे 3/4. अभी इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है y इक्वल्स टू mx प्लस c में. तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. y कंपोनेंट है मेरा 3, m को अभी ऐसे ही लिख लो. x कंपोनेंट है मेरा 4, और c को मैं लिखूंगा 4.5. तो ये वैल्यू से हमको m का वैल्यू और वो सब पता चल सकता है. तो ये है आपके ग्राफ्स y इक्वल्स टू mx एंड y इक्वल्स टू